मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने आए हैं। देखिए, सेवा तो पंजाब ही पूरे देश की सेवा करता है। पूरे देश को जो खाना खिलाता है वो पंजाब के किसान हैं। तो हम तो क्या ही सेवा कर सकते हैं पंजाब की, लेकिन हम अपना फ़र्ज निभाने आए हैं, क्योंकि पंजाब ने हमें सिखाया है मानवता के लिए लड़ना। भी गाँव में हम गए हैं, उन्होंने चाहे बच्चे हों चाहे बुज़ुर्ग हों, ज़्यादातर हमारा बच्चों और औरतों से हमने बातचीत करी है, तो सभी ने यही बोला कि कोई भी सरकार की तरफ से, हमने छोटे छोटे वीडियो भी बनाई, तो लोगों ने यही बोला, चाहे कोई हमारी केंद्र सरकार का हो चाहे पंजाब सरकार का हो, कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई एमपी अभी तक यहाँ हमारा हाथ पकड़ने नहीं आया है। मच्छरदानियाँ नहीं है, पीने का पानी तक नहीं है। वो कहते हैं संस्थाएं आती हैं, लेकिन संस्थाओं की भी अपनी एक लिमिटेशन है जी। वो कितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, उनमें हमें कोई शक नहीं है, लेकिन सरकार है जो सबके लिए बहुत कर सकती है, सबके लिए। हाँ, करने नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। 1.5 महीना होने वाला है जब से स्कूल बंद पड़ा है। खाना मिल जाएगा, चलो हमारे देश में पंजाब है ये, 6 महीने बाद फिर हरी भरी होगी इसकी धरती, सबको खाना मिल जाएगा, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं। वो उम्मीद हमें इस गांव के लोगों से ही है, किसानों से ही है। सरकार फिर भी नहीं देगी कुछ भी, लेकिन उन बच्चों की पढ़ाई का क्या हो, आप ये सोचो। दुख की बात है, यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा है, बाढ़ आ गई, ये नेचुरल कैलेमिटी कह के सरकार अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो सकती है? कितनी शर्म की बात है। ये जो मोदी जी हैं, चाहे वो भगवंत मान हैं, चाहे वो दिल्ली में रेखा गुप्ता जो हैं, हरियाणा में जो सैनी हैं, चाहे कोई भी हैं, ये पूंजीपतियों के गुलाम हैं और ये पूंजीपतियों की पॉलिसीज लागू कर रहे हैं यहाँ पर। शहीद आजम भगत सिंह ने भी तो समाजवाद के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने क्या कहा था कि हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया और हमारी लड़ाई खत्म हो गई। बात ऐसी नहीं है। हाँ, हमारी लड़ाई जब तक चलेगी जब तक इंसान के द्वारा इंसान का शोषण खत्म नहीं हो जाता। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਣੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਆਈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਾਡੀ ਦਿਖੀ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਗਏ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੇ 4-5 ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ, ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਧੀਰਾ ਘਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਧੀਰੇ ਘਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ बता दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रितु कौशिक है और हम लोग यहाँ अपने महिला संगठन ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की तरफ से मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने आए हैं। देखिए सेवा तो पंजाब ही पूरे देश की सेवा करता है। पूरे देश को जो खाना खिलाता है वो पंजाब के किसान हैं। तो हम तो क्या ही सेवा कर सकते हैं पंजाब की, लेकिन हम अपना फ़र्ज निभाने आए हैं क्योंकि पंजाब ने हमें सिखाया है मानवता के लिए लड़ना, और मानवता के लिए लड़ते हुए हमने देखा भी है पंजाब को। तो वो सीख को थोड़ा हम भी अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, और हम अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ही हमारी आगे आने वाली जनरेशन सीखेंगी कि हाँ ये असली मानवता का अगर धर्म हम कहें तो वो यही है कि दूसरों के सेवा में ही जीवन का जो असली सबब है वो तभी है। सुख तो बांटते रहना चाहिए। यदि सुख है तो वो भी बांटिए। यदि आसपास में जैसे हम बहुतात लोग गरीब होते हैं जिनको ज़रूरत होती है, उनके दुख में शामिल होंगे तो संतुष्टि मिलती है। आप कितने को गांव में घूमे हुए हैं, कैसा माहौल देखा, मंजर कैसा है? मंजर देखिए बहुत दुख हो रहा है घूम के बहुत सारे गाँवों में, क्योंकि थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड हरियाणा का दिल्ली का रहा है, तो जैसे गाँव के नाम ज़्यादातर याद नहीं है, लेकिन जैसे धीरा घर है, फिर गट्टी राजो की टिंडी वाला, और वहाँ गए, और भी गट्टी राजो की से लेकर टिंडी वाला तक 11 गांव हैं बीच में, तो उन सभी गांवों में हमने देखा। हाँ जी, मंजर इतना तबाही का मंजर है। कहीं कहीं पर भी तो हमारे यहीं के ही लोकल जो हैं, हमारी बहन बैठी हैं पीछे, सरबजीत जी, इन लोगों के साथ से हम जा पाए। अगर इनका साथ नहीं होता तो शायद हम पहुंच भी नहीं पाते। लेकिन वहाँ हम गए, लोगों को दवाइयों के लिए पूछा। कहीं कहीं पर इतना सुनने में आता है कि बहुत पंजाब जो है वह कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर, तो अरे बड़ा पैसा आ रहा है बाहर से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कहते हैं नहीं होनी चाहिए थी। अगर ऐसा होता तो हम बड़े खुश होते। जो हमने सुना है कि वहाँ क्या दिक्कत है बड़ाई, लेकिन सच में हालात बड़े ख़राब हैं। तबाही का मंजर आपने देखा है। किसानी बर्बाद हो गई, किसान मजदूर भी बर्बाद हो गया, क्योंकि किसान के साथ ही मजदूर चलना था ना, तो मजदूर भी इस टाइम बर्बाद है। उनकी दिहाड़ी नहीं चल रही, वो घर पे बैठा हुआ है। तो इस टाइम तबाही का मंजर है। वैसे तो ये हाथ पकड़ने थे सरकारों ने। आपने कैसा देखा, लोग क्या बोलते हैं जब गांव में जाती हैं? सरकार आ रही है गांव में, किसी ने पूछा आपसे, जहाँ कभी पता चलता है आपको? क्योंकि सरकार तो, मैं भी धीरागारा के बच्चों के साथ बात की है अभी मैंने, तो बच्चियाँ पता कह रही थी कोई भी नहीं पहुँचता, कहते संस्थाएं पहुँच रही हैं, आप जैसे लोग पहुँच रहे हैं, कह रही हमारे पास सरकार MP MLA कोई नहीं पहुँच रहा। जी बिल्कुल, हमें भी इसी तरीके से लोगों ने बताया। जिस भी गांव में हम गए हैं, उन्होंने, चाहे बच्चे हों चाहे बुज़ुर्ग हों, ज़्यादातर हमारा बच्चों और औरतों से हमने बातचीत करी है, तो सभी ने यही बोला कि कोई भी सरकार की तरफ से, हमने छोटे छोटे वीडियो भी बनाई, तो लोगों ने यही बोला, चाहे कोई हमारी केंद्र सरकार का हो चाहे पंजाब सरकार का हो, कोई मंत्री, कोई MLA, कोई MP अभी तक यहाँ हमारा हाथ पकड़ने नहीं आया है। आए में तो दूर जहाँ से पानी स्टार्ट होता है ना, बांध पे, जैसे बांध बने हुए हैं वहीं पर आते हैं, वहाँ फ़ोटो वगैरह खिंचवाई और चले गए। लेकिन यही बात है कि लोगों को दुख है इस बात का। उनके चेहरे से पता चल रहा है कि अभी तक भी लोगों के पास मच्छरदानियाँ, इसी गांव की मैं बात कर रही हूँ, ये बच्चियाँ जो हमारे साथ थी पूरा दिन, पिछले दिन हम जब आए थे, मच्छरदानियाँ नहीं है, पीने का पानी तक नहीं है। वो कहते हैं संस्थाएं आती हैं, लेकिन संस्थाओं की भी अपनी एक लिमिटेशन है। जी, वो कितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, उनमें हमें कोई शक नहीं है। लेकिन सरकार है जो सबके लिए बहुत कर सकती है, सबके लिए। हाँ, करने नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं। वो इतना कर सकती हैं कि आज ये बच्चों का स्कूल, आप देखो सामने स्कूल है, 1.5 महीना होने वाला है जब से स्कूल बंद पड़ा है। खाना मिल जाएगा, चलो हमारे देश में पंजाब है ये, 6 महीने बाद फिर हरी भरी होगी इसकी धरती, सबको खाना मिल जाएगा, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं। वो उम्मीद हमें इस गांव के लोगों से ही है, किसानों से ही है। सरकार फिर भी नहीं देगी कुछ भी, लेकिन उन बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, आप ये सोचो। अभी वो तो पीछे चले गए। अभी आज मैंने आते ही फिर पूछा कि स्कूल खुल गया,
वो कहते हैं कल परसों जब हम आए थे तब कह रहे थे खुलने वाला है, लेकिन आज भी स्कूल नहीं खुला है ना। तो हमारा तो मन यही है कि हम यहाँ पर बच्चों को पढ़ाएं कैसे करके, क्योंकि ये बच्चों की ज़िंदगी जो है ना वो आज शिक्षा पर ही निर्भर करती है। शिक्षा के भरोसे ही हम आज यहाँ बैठे हैं। हमारा भविष्य है, बच्चों में भविष्य देखते हैं हम, क्योंकि इसी में सीएम निकला, इसी में पीएम निकलेगा, एमएलए एमपी निकलेंगे, पता नहीं किस गांव में कौन बैठा हुआ है, कहाँ पीएम बैठा है, कहाँ सीएम बैठा है, एमएलए एमपी बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कौन साइंटिस्ट बन सकता है, यही बच्चे हैं। इतने बड़े बड़े हमारे देश में साइंटिस्ट हुए हैं, इतने बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, लेकिन आप देखो कहाँ हैं सब वो लोग। मैं तो पूछती हूँ कहाँ हैं वो लोग, जब इस देश के गाँव के, वो भी पंजाब के बच्चे जिन्होंने आज़ादी आंदोलन से लेकर और आज तक देश के लिए काम किया, देश के लिए आवाज़ उठाई, उस पंजाब के बच्चे अगर 1.5 महीने से स्कूल नहीं जा रहे हैं तो ये दुख की बात है। यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा है, बाढ़ आ गई, ये नेचुरल क्लैमिटी कह के सरकार अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो सकती है? कितनी शर्म की बात है। इतने हमारे पास इतने संसाधन हैं सरकारों के पास कि यहाँ पैरेलल स्कूल चल सकता है। इतने लोग बेरोजगार पड़े हैं शिक्षा के क्षेत्र में, इतने पद खाली पड़े हैं शिक्षकों के, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कहीं पर भी आप देख लो, शिक्षकों के पद सबसे ज़्यादा खाली पड़े हैं, लेकिन उनको भरा नहीं जा रहा है। ये आज आप देख लो, आप जो शिक्षक कर्मचारी नहीं है, कितने वॉलंटियर्स ऐसे आ जाते, सरकार एक आए तो सही यहाँ पर। एक वॉलंटियर घूम रहे हैं, आप भी वॉलंटियर हैं, हम भी वॉलंटियर हैं, घूम रहे हैं, इन लोगों के लिए घूम रहे हैं ना, क्योंकि ये फर्ज निभा रहे हैं हम सभी। तो सरकार जिसका फर्ज था तो वो दूर है, वो दूर है बिल्कुल। तो मैंने पहले भी आपको बात की थी, हम आप पंजाबी जो है, खास करके पंजाब में रहने वाला, जहाँ पंजाब से बाहर पंजाबी है ना, तो महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बात करते हैं। आपने भी सुना होगा, महाराजा रणजीत सिंह का राज ऐसा था, कहते हैं कि भूखा नहीं रहता था उस राज में, और हर कोई अमीर था। अमीर ऐसी था कि हर एक को भूखा नहीं है तो अमीर ही है, जिसके पास सब कुछ है, घर है, बाहर है, भूखा नहीं सो रहा, वो अमीर है। कहा जाता है कि उस टाइम सोने की कोई कमी नहीं थी, और कुत्ते के गले में कैंठा, हमारे कैंठा कह देते हैं, वो गले में जो डालते हैं ना लड़के पहन के, जब शादियां होती हैं कैंठा पहनते हैं, उसमें वो कहते हैं डाल दिया जाए ना तो पूरे शहर में घुमा दो, उनको कोई उतारता नहीं था, क्योंकि वहाँ चोर चके नहीं थे। और आज यहाँ कुछ पहन के यहाँ से 2 किलोमीटर चले जाओ, जहाँ आपका हाथ नहीं तो जहाँ जो पहना वो नहीं है। सही बात है बिल्कुल। देखिए हमारा देश जो है वो सचमुच में ही इतनी फर्टाइल लैंड्स है ना, यहाँ बोला जाता है कि अरे यहाँ पर ना सबका पेट नहीं भरा जा सकता क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, तो हम कहते हैं ये ना इससे बड़ी झूठ नहीं हो सकती कोई, क्योंकि हमारा देश ऐसा है पूरे विश्व में जहाँ पर साल में 2 फसलें होती हैं। यहाँ का मौसम ऐसा है कि हर मौसम की अपनी फसल है, ठीक है। तो यहाँ के जो संसाधन है ना वो इतने फर्टाइल हैं कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो सबका पेट भर सकती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, यहाँ कैपिटलिस्ट का राज है। ये जो मोदी जी हैं, चाहे वो भगवंत मान हैं, चाहे वो दिल्ली में ये जो भी गुप्ता जो हैं, रेखा गुप्ता जो हैं, हरियाणा में जो सैनी हैं, चाहे कोई भी हैं, ये पूंजीपतियों के गुलाम हैं और ये पूंजीपतियों की पॉलिसीज़ लागू कर रहे हैं यहाँ पर। आपने किसान आंदोलन में देखा, वो पॉलिसीज़ किसानों के हित की थी? नहीं थी, ना ही तो हाँ, इसीलिए वो पॉलिसीज़ सिर्फ कैपिटलिस्ट के हित में थी, इसीलिए हमारे इस पंजाब के लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया। तो कैपिटलिस्ट पंजाब के बड़े खिलाफ हैं। क्रांतियाँ भी पंजाब से उठी। हरी क्रांति की बात होती है, वाइट क्रांति, पंजाबी में चिट्टी क्रांति कहते थे उसको, वो क्रांतियाँ उठी यहाँ पंजाब से। यहाँ आंदोलन हुआ, सबसे बड़ा आंदोलन है जो किसानी आंदोलन कहा जाता है, पंजाब से इधर थे। हाँ, वो आंदोलन ऐसा था कि हर घर से उठा, वो आगे जरूर पंजाब चला, हरियाणा कहने लगा कि मैं भाई हूँ, छोटा भाई की तरफ से साथ में चले। उसके बाद पूरा देश उठा, और पूरा देश उठने के बाद दिल्ली के 4 चफेरे केवल ट्रैक्टर ट्रालियाँ दिखाई दे रहे थे। वहाँ जो कुछ हुआ आपने पास होकर देखा, हमने पास होकर देखा, वो जीता आंदोलन, और सबसे बड़ा आंदोलन था, विश्व भर का आंदोलन बन गया था वो, और सबसे बड़ा आंदोलन था वो। जी, बहुत बहुत बड़ा आंदोलन था, ऐतिहासिक आंदोलन था, अतुलनीय आंदोलन था। हम कहते थे कि हमने बड़ा सीखा वहाँ जाके, वहाँ सीखा कि समाज कैसा होना चाहिए, जहाँ कोई भूखा, आपने बोला महाराजा रणजीत सिंह जी के राज में कैसा था,
तो वैसा ही समाज होना चाहिए, कोई भूखा ना मरे। समाजवाद, भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह ने भी तो समाजवाद के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने क्या कहा था कि हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया और हमारी लड़ाई ख़त्म हो गई। बात ऐसी नहीं है। हाँ, हमारी लड़ाई जब तक चलेगी जब तक इंसान के द्वारा इंसान का शोषण ख़त्म नहीं हो जाता। एक पूंजीपति के द्वारा मजदूर का शोषण, एक अमीर के द्वारा गरीब का शोषण, आदमी के द्वारा औरत का शोषण, एक ऊंचे जाति के व्यक्ति के द्वारा नीचे जाति के व्यक्ति का शोषण, जब तक ये शोषण खत्म नहीं हो जाता तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो ये लड़ाई किसने शुरू करी? ये पंजाब ने शुरू करी, हरियाणा ने साथ दिया किसान आंदोलन में। क्या हमने देखा? वही सपना देखा साकार होते हुए भगत सिंह का कि यहाँ कोई अमीर नहीं है, सब एक लंगर में बैठ के खाना खा रहे हैं, है ना। कोई जाति, कोई नहीं पूछ रहा था जाति। 12-15 किलोमीटर से दूर से आकर भी वहाँ खाया जाता था, कोई भी पहुंचे, कोई रोका नहीं गया। कोई नहीं रोका गया। दिल्ली के, मैं कहती हूँ, कितने सारे लोग ऐसे थे जो वहाँ आंदोलन को सिर्फ देखने आते थे और वहाँ खाना खा के जाते थे, किसी के लिए कोई मनाही नहीं थी। तो ऐसा समाज बनाने की शुरुआत हो चुकी है, उस आंदोलन ने ये दिखाया। तो इसीलिए आज ये सरकारें हमारी डर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे खिलाफ जो भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी थी, वो भगत सिंह की लड़ाई जो है वो फिर से वो कड़ी, जो कड़ी टूट गई है ना, वो कड़ी ना जुड़ जाए कहीं। इसीलिए ये बोलते हैं नहीं, यहाँ तो समस्या इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है। अरे पॉपुलेशन है, ये आज एक किसान के खेत से हम कुछ भी उठा लेते हैं, वो खुश होता है कि अरे मेरे खेत से लेकर गए, अच्छी बात है। लेकिन आप एक दुकानदार के ट्रॉफी लेकर देखो आप 2 पैसे की, वो कहते हैं पहले पैसे रखो। तो ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ना, इसके खिलाफ लड़ाई की जो शुरुआत किसान आंदोलन में हुई है, उससे सरकार डर चुकी है। और वो हमारे हरियाणा पंजाब के किसान भाइयों के हाथों में ये जो संसाधन है ज़मीन, ये ज़मीन पूंजीपतियों को बेचना चाहती है। पंजाब में चला था, फिर आंदोलन स्टार्ट हुआ था। जो थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा, यहाँ की तस्वीरें वायरल हुई, किसान आगू जो वो सड़कों पे आए। हाँ, ये माहौल ऐसा बन गया, पंजाब में पानी आ गया, बहुत हादसा पानी में डूब रहा है इस टाइम। जे पानी में डूबा तो वहाँ हमारी संस्थाएं आगे आई, उन्होंने कहा कि हम डूबने नहीं देंगे। और आपके जैसे भाई बहन बाहर से आए, आपका भी अति धन्यवाद, क्योंकि आपने टाइम निकाला, आप इस जगह पे आए हैं। इस मंजर को देखना बहुत बड़ी बात है और उस लोगों के साथ खड़ना, रितु जी, बहुत बड़ी बात है। आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप पंजाब की धरती में आके उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि आज हौसले की ज़रूरत है। जी, फ़र्ज़ है हमारा, ये हमारा फ़र्ज़ है। नहीं तो हमारी खुद की जो आत्मा है ना, वो हमें कचोटेगी कि हम ले तो रहे हैं सब कुछ, लेकिन हम दे क्या रहे हैं। आइंस्टीन इतने बड़े एक महान वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने भी यही बात बोली है कि जितना समाज से मैंने लिया है ना, और मैं आज आइंस्टीन बना हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी में मैं शायद उसका छोटा सा हिस्सा भी अदा ना कर पाऊँ। तो हम तो क्या ही हैं। उन्होंने कई बार तो ऐसे भी रितु जी कह देते हैं कि किसान तो फसल बीजता है पर उसका मोल ले लेता है। गेहूं का मोल ले लिया हमने, मोल, मैं मान लो शहर में रहता हूं तो मैं कह दूंगा मैंने तो मोल लिया हुआ है, इसमें किसानी का क्या मतलब है? आप क्या समझते हैं? किसान से लेकर तो अक्सर मोल भी लिया हो तो किसान बीजता है, उगाता है, 6 महीने के बाद वो फसल बड़ी होती है। और आज का मंदिर देखकर तो आंसू आ रहे हैं। वैसे 4 चफेरे देख के आंसू आते हैं कि ऐसा मंजर है कि अपने ना बेटे बेटियों की तरह फसलें पाली जाती हैं और उसके बाद में जब वो बह जाती हैं ना तो फिर आंसू रह जाते हैं। तो आंसू भी हमारे अपनों ने बहाने नहीं दिया वैसे कि नहीं, भी आंसू पोंछने के लिए भी पहुँचे हुए लोग। सही बात है। देखिए, जो आज कह रहे थे आप कि किसान की कीमत मिल जाती है, असल में मिलती नहीं है। उसको उसका दाम नहीं मिलता है। जितना वो मेहनत करता है, पूरी उसका परिवार मेहनत करता है, तब जाके उसके हाथ में अनाज आता है। लेकिन जब वो अनाज वो मार्केट में बेचने जाता है तो उसके हाथ खाली हो जाते हैं। उसके हाथ भरने चाहिए थे कि हमने फसल पैदा करी है तो हमें उसके उतना ही उत्तम दाम मिले। लेकिन आज वो खाली होकर घर लौटता है और वो ऐसे करके बैठ जाता है कि मैं क्या करूं। वो सोचता है कि मेरी बेटी की शादी मैं कैसे करूं, मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊं। बेरोजगारी का आलम ये है कि आज 45 सालों का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट चुका है। हर घर बेरोजगारी से परेशान है। माँ बाप के सामने एक बेरोजगार बेटा, एक बेटी, वो कैसे सहन करते होंगे आप सोचिए। और फिर उसके बाद
किसानों को कुछ मिलता नहीं है फसल से। महिलाओं के साथ इतने अत्याचार अपराध हो रहे हैं क्योंकि सरकार ना ही तो रोजगार दे पा रही है, ना ही शिक्षा दे पा रही है। एक युवा जो बेरोजगार है, जिसके पास शिक्षा भी उस तरीके से नहीं है, उसके सामने आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। या तो वो आत्महत्या करके अपने जीवन खत्म कर लेता है, या फिर उसको नशे की आदत पड़ जाती है। और नशा उसी को बर्बाद नहीं करता, पूरे घर को बर्बाद कर देता है। हमने तो पंजाब में कितने देखे, कैसे घर देखे, इतने बड़ी बड़ी कोठियाँ, एक बेटा लेकिन नशेड़ी हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, ज़मीनें बिक गई हैं, घर कोठी जो थी वो झोपड़ी बन गई है। तो इसके पीछे कौन है आप बताइए। कहते हैं उड़ता पंजाब, अरे शर्म की बात है आप लोगों के लिए कहना, जो भी कहता है इस चीज़ को। कौन उड़ा रहा है ये तो पूछो, उड़ा कौन रहा है। जी एक दो और भी देखी होगी। अब जो आ रहे हैं ना हमारे, अभी एक दो ट्रैक्टर मैंने अभी देखे थे, वो बाहर से आए हुए थे। हमारा पंजाब उठ खड़ा हुआ है। कुछ परसेंट हमारी नौजवानी जो नशे में गई, वो भी सरकारों की मेहरबानियाँ थी। हाँ, सरकारों की। और आज हमारी नौजवानी उठ के ये सड़कों पे है, इन धीरागरा गांव में है, टल्ली गुलाम में है, अलग अलग गांव में है, उधर डेरा बाबा नानक वाली साइड पे है, लोहिया साइड पे, हर एक जगह जाएंगे ना तो ट्रैक्टर पे 8-8 10-10 लड़के दिखाई दे रहे हैं। और वो गुरु साहब का जो होका हमें मिला हुआ है, जकारे छोड़ रहे हैं और फतेह बुला रहे हैं। आपको सबको मिलते हैं, गले से लगाते हैं, और वो मिलते हैं गले से लगाते हैं तो साथ कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं अपने भाई बहनों के लिए कि आपको ज़रूरत है, इन गाँव की ज़रूरत है, वो ज़रूरत है पूरी भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये प्रचार झूठा किया जा रहा है क्योंकि इन लोगों को अपने शराब का जो नशा है ना उसका व्यापार बढ़ाना है। क्योंकि पता है लोगों के लिए, उनके पास लोगों को देने के लिए आज कुछ भी नहीं है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना सुरक्षा है। तो अगर नशा नहीं जो करता होगा, एक जिसकी कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है जिस इंसान की, लड़ता वही है। तो आज ये हमारे युवाओं की जो रीढ़ की हड्डी है, जो सांस्कृतिक नैतिकता, जो मौलिकता है, जो मूल्यों को नष्ट किया जा रहा है, जो मूल्य इतने उन्नत है हमारे भारत के। एक तरफ तो ये मोदी सरकार कहती है कि भारत की संस्कृति, भारत के मूल्य, उन्हीं मूल्यों को नशाखोरी में डुबोया जा रहा है। ये खुद ये काम कर रहे हैं। रोक भी सकती है सरकार, तो रोक सकती है, क्या नहीं कर सकती सरकार? नहीं कर सकती सरकार, क्यों नहीं, आराम से रोका जा सकता है। लेकिन ये आज नेक्सस चल रहा है कैपिटलिस्ट का, पूंजीपतियों का और क्रिमिनल्स का। इस नेक्सस को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके चलते आज हमारे युवा जो है वो नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। एक तरफ नशे का जो है वो पूरा प्रचार फैलाया जा रहा है, और आप देखिए मास जो मीडिया है, मीडिया के थ्रू कितनी अश्लीलता फैलाई जा रही है। आज एक भाई बहन माता पिता बैठ के नहीं देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनके काम की भी वो चीज़ नहीं है, वो अपना होमवर्क कर रहे होते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती साइड में ऐसा कुछ चलेगा, उसका ध्यान जाएगा ही जाएगा। तो ये हम पूछना चाहते हैं सरकारों से कि आप एक तरफ संस्कृति की बात करते हो और ये अब संस्कृति फैलाई जा रही है। जो आप संस्कृति फैला रहे हैं उसके खिलाफ आप क्या कदम उठा रहे हो। संस्कृति की बात करते हैं ना, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। हम भी कहते हैं उन्नत संस्कृति से ही इंसान जो है वो उन्नत बनता है। तो जी जब तक बिकाऊ मीडिया रहेगा ना, ये होता रहेगा। असल में गोदी मीडिया क्यों कह देते हैं ना, कुछ मीडिया आंदोलन आपने देखा, जिसने फर्ज निभाए वहाँ घूमता था, फिरता था, और जिसने फ़र्ज अच्छे नहीं निभाए थे वहाँ उनकी बदनामी भी हुई, उनको भगाया भी गया। इसलिए तो कहते गोदी मीडिया अलग था, पंजाबी मीडिया या हरियाणा का मीडिया वो अलग उसने काम किया। हर एक जगह का मतलब मीडिया का फ़र्ज जो होता है ना, सही मायने में जो मीडिया अच्छे फ़र्ज निभाए तो देश की क्रांति में एक बड़ा योगदान डाल सकता है मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया में बहुत ताकत है। मीडिया तो मत निर्माता है, वो तो मत का निर्माण कर सकता है अगर एक अच्छा मीडिया समाज में हो। अब लोग कहते हैं कि वही दिखाया जाता है जो लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं है। जो सरकार चाहती है, जो पूंजीपति चाहते हैं वो दिखाया जाता है। और प्रेमचंद जी ने कहा था कि मीडिया में वही आना चाहिए जो सही है, जो एक समाज को सही दिशा दे, जो लोगों की आवाज़ है और एक सही दिशा दे। दिशा सही होनी चाहिए, मीडिया का ये फ़र्ज़ बनता है। मीडिया का फ़र्ज़ ये नहीं बनता है कि जो हमारे व्यूज़ हैं वो किससे ज़्यादा आएंगे वही दिखाएंगे। तो ये सारी जो एक कैपिटलिस्ट की प्लानिंग है, इसके खिलाफ हम लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। आज ये हमें एकजुट भी नहीं होना देना चाहते,
क्योंकि जब देखते हैं कि एकजुट हो रही है जनता, जब देखते हैं कि किसान आंदोलन जैसा आंदोलन भारत में हो सकता है, तो इनमें फूट डालो। हाँ, कोई हिंदू करो, मुसलमान करो, सिख करो, ईसाई करो, ये सांप्रदायिकता की जो आज फैलाई जा रही है धर्मों के बीच में। जबकि आज हमने देखा, देखिए हमारे मुसलमान भाई अभी गाड़ी लेकर अभी गाड़ी लेकर गए हैं, और कितने, चाहे वो, उन्हें पता नहीं है कि वो किसकी मदद करने जा रहे हैं, कि वो सिखों की मदद करने जा रहे हैं, कि वो मानवता की मदद करने के लिए आए हैं यहाँ पर। और जो हमारे पंजाबी भाई हैं वो भी उनको वैसे गले लगा रहे हैं। हमने तो कितना देखा कि जिस भी गाँव में जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, हमसे तो किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारी क्या धर्म है तुम्हारा। ये हमारे हिंदुस्तान का कल्चर ये है ही नहीं। सियासतदानों ने बना दिया ना, सियासत ने बना दिया सारा। यहाँ सियासतदान जो हैं वही बांटना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इकट्ठे हों। क्योंकि ये वो भी जानते हैं कि जो अंग्रेज़ों ने किया, हिंदुस्तान को बांट दिया और हिंदुस्तान की ताकत को कमज़ोर कर दिया, और उन्होंने 200 साल तक राज किया। इसीलिए ये कैपिटलिस्ट जो है, वो भी कैपिटलिस्ट थे। वो जो साम्राज्यवादी सरकार, वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भी कैपिटलिस्ट थी। और आज कैपिटलिज्म का रूप चेंज हो गया है। अभी तो कह दिया जाता है कि गोरे अंग्रेज तो इत्थों चल गए सी ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਰਿਤੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ जिथे अकाल चैनल सेवावां निभा रहा अपना, आवाज़ बने हुए हैं, तो वहाँ अकाल एड की तरफ से भाजी चरणजीत का साथ बैठे हुए, कुछ ना कुछ सेवा हम इन भाइयों की तरफ, किसी भी ज़रूरत हो आवाज़ बने, और कुछ लेकर भी आते हैं साथ में। मेडिकल कैंप हैं, कुछ ना कुछ अलग से, कुछ चौकर सेवा, फीड की सेवा, जो भी हो सकता हो, क्योंकि ये हमारा धर्म सिखाता है हमें। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा हमें कि आप दो काम कर रहे हैं। एक तो जनता की आवाज़ को पहुंचा रहे हैं, दूसरा आप ये दवाइयों की ज़रूरत जो है वो लोगों की वो पूरी कर रहे हैं, जो कि सरकार को करनी चाहिए थी। मैं कहती हूँ दुख होता है। हमने भी पीछे अमृतसर में 7 दिन से हमारा कैंप चल रहा है, और इधर फिरोजपुर में आज चौथा दिन है। हम देखते हैं वहाँ पर गट्टी राजोकी में, मैं कहती हूँ कि 3 दिन में, पिछले 3 दिन में, आज की रिपोर्ट तो लेनी पड़ेगी, पिछले 3 दिन में हमारे डॉक्टर साहब खड़े हुए थे अभी यहाँ पर, 400 से ज़्यादा मरीज़ देख चुके हैं। मैं कहती हूँ कि सरकार को तो घर घर जाकर मरीज़ों की देखनी चाहिए थी। वो बेचारी प्रेग्नेंट औरतें, और जब भैया बाढ़ आती है ना, तब सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं औरतें। उनके अंदर हाइजीन जो है वो सिखानी चाहिए सरकार को जाकर। इतनी आशा वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, जो कि जिन्होंने कोविड में इतनी अच्छी सेवा की। लेकिन आज जो सरकार, जो फ़र्ज़ निभाना चाहिए सरकार को, कि लोगों के घर घर में जाकर पूछना चाहिए किसको क्या बीमारी है। एक 9 महीने के प्रेग्नेंट औरत वो कैंप में आके खड़ी हो रही है। कितनी शर्म की बात है। हमारा दिल दुखता है कि इस औरत को तो बेचारी को अपना रेस्ट करना चाहिए। 6-6, 5-5 महीने के बच्चों को लेकर आ रहे हैं। सोचिए आप कितने मजबूर होके वो आ रहे हैं। होना ये चाहिए था कि सरकार के पास इतने संसाधन हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, इतने ज़्यादा उनके पास दवाइयाँ हैं, इतना पैसा है कि आज पंजाब जो है वो किसी बीमारी से, मतलब होना ही नहीं था, बीमारियाँ, पीड़ित होना ही नहीं था किसी ने। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਲ ਦਿਓ ਉੱਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਆ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧੀਰਾ ਘਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। ਰਿਤੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਧੀਰਾ ਘਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਤੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।